Hello student, this is the topic of chapter 4, that is multiplication and division of algebraic expression. In this video we will talk about, in the previous video we have learned about the multiplication of algebraic expression, and in this video we will talk about the division of algebraic expression. Now division, in this we will going to discuss division of a monomial expression by another monomial expression. मतलब हम मोनोमियल एक्सप्रेशन को कैसे मोनोमियल एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स सिंगल टर्म को हम सिंगल टर्म के साथ कैसे डिवाइड करेंगे. हियर इज द एग्जांपल, डिवाइड 18x square y by 6x square. So we have to divide 18x square y by 6xy. So we will question is, we will write question in this form: 18 into x square into y divided by 6 into x into y. So what are the common terms? Here y and y are the common terms, so we will cancel out y and y. Similarly 18 and 16 both comes in the table of 6, so we will cancel out 6 and 18. What we left with? 3 into x square upon x. We can write x square as x into x. So it get cancelled by the denominator x. So what we left with? 3x. So here is the answer, that is 3x. Similarly, question example 2, divide minus 35 mn square p by 7 np. So we have to divide minus 35 mn square p by 7 np. First we have to write in this form: 35 into m into n square into p divided by 7 into n into p. So what are common in both the denominator and in numerator and denominator? pp. So it should be cancelled out. 35 and 7 5s are 35. So what we left with? Minus m into m, and n square can be written as n into n divided by n. So n can be cancelled. So what we left with? Minus 5 mn, and this is the answer. Now the next topic is division of a polynomial by बायनोमियल. मतलब कोई भी पॉलिनोमियल मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो. पॉलिनोमियल मीन्स पॉली मतलब मैनी, तो बहुत सारे टर्म्स हो जिसमें, उसको जब हम बायनोमियल टर्म से कैसे हम डिवाइड करेंगे. हियर इज द एग्जांपल: 18a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 27a क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3a बाय 2. सो इस एक्सप्रेशन में a क्यूब यहाँ लिखा हुआ है, a स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, a 12a यहाँ सिंगल a वाला टर्म यहाँ लिखा हुआ है. तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, इनके एक्सपोनेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो फर्स्ट वी विल राइट 27a. सो फर्स्ट वी विल राइट द अबव एक्सप्रेशन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एक्सपोनेंट्स. सो फर्स्ट वी विल राइट 27a क्यूब प्लस 18a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3a बाय 2. तो अब ये जो 3a बाय 2 है, मतलब क्योंकि ये जो डिवीजर है इसके पास दो टर्म्स है, तो हमको इसमें भी दो टर्म्स को लेना पड़ेगा. वी विल टेक फर्स्ट टू टर्म्स, दैट इज 27a cube plus 18a square. Now
हमको ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा 3a + 2 के लिए जो कि जिसमें 27 आए। तो 3 9 होता है 27। तो जब हम 3a + 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, और क्योंकि यहाँ पे a क्यूब है 27a³, तो हमको 3a हमको इसके साथ a 2 और a चाहिए। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 9a²। सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 27a³ + 18a²। तो हमने वही किया है, यहाँ पे हमने 27a³ + 18a²। हमने ऐसे नंबर से इसको डिवाइड किया कि हमको ये सेम चीज़ मिले। तो हमने इसको 9a² से मल्टीप्लाई किया। व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 9a², वी विल गेट 27a³ + 18a²। So when we solve it, when we solve it, we will get these two get cancel out, and now we will left with 12a + 8. Now 12 कब आता है 3 के टेबल में? 4 सम। तो when we multiplied 3a + 2 whole expression by 4, we will get 12a + 8. 2 4s are 8. So these all get cancelled out. So here the remainder is 0, and the question here is 9a² + 4. So जिस भी क्वेश्चन में अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हम ये बोलते हैं कि जो 3a² + 2 मतलब जो भी हमारा डिवीजर है, here the divisor is 3a + 2. तो 3a + 2 is a multiple factor of 18a² + 12a + 27a³ + 8. Next example, divide 12x³ - 8x² - 5x + 10 by 2x - 3. So यहाँ पे भी हम, क्योंकि ये बायनोमियल है तो हमको यहाँ पे 2 टर्म्स दिए हुए हैं, तो हमको डिविडेंड में भी 2 टर्म्स कंसिडर करने पड़ेंगे। सो 2x - 3, तो फर्स्ट टर्म वी हैव टू टेक इज 6। हम 6 क्यों लेंगे? क्योंकि 6 जब हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 12. सो हियर द साइन इज ऑफ नेगेटिव, सो वी विल टेक -6, and the power of x is cube, and here it is single x, so we have to take 2 more x, मतलब हमको 2 और x लेने पड़ेंगे। दैट मीन्स x²। तो हम 2x - 3 को सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -6x² से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -12x³ प्लस 6 3s are 18x². Now when we solve it, we will get ये माइनस और यहाँ पे जो साइन चेंज होगा माइनस प्लस, तो here we will get 26x², here -5x. Now फिर हमको दो टर्म्स लेने पड़ेंगे क्योंकि बायनोमियल है। अब हमको 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमको 26 मिले। तो we will multiply 2 by 13x so that we will get 26. Now 26, 13 2s are 26x². 13x multiplied by 2x, that is 26x². Minus plus 13 3s are 39. So when we solve it, we will get here minus plus, तो we will get 44x plus 10. अब हमको 44 चाहिए तो हमको 2 को 22 से मल्टीप्लाई करना, और विथ नेगेटिव साइन, तो हमको 2 को 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हमने 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट 44x, एंड जब हमने
3 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट 66. नाउ जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो वी विल गेट रिमाइंडर एज -56. नाउ इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बिकॉज हमारे पास इतने ही टर्म्स थे. सो here the remainder is not 0 but the remainder is -56. So we can say that 2x minus 3 is not a multiple factor of minus 12x cube minus 8x square minus 5x plus 10.